بریک کے بعد نیوز اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں لاہور سیالکوٹ موٹر وے دھند کے باعث بند کر دی گئی ہے۔ لاہور سیالکوٹ موٹر وے پر حد نگاہ 50 میٹر سے کم رہ گیا۔ موٹر وے M3 لاہور سے سمندری تک دھند کے باعث بند کر دی گئی ہے۔ دھند کے باعث موٹر وے M2 لاہور سے خاکہ ڈوگرہ تک بند کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے، شاہزیب بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شاہزیب بتائے گا کیا ایڈوائزری جاری کی گئی ہے؟ جی بالکل، شہر میں ہر طرف صرف دھند اور دھند ہی نظر آ رہی ہے، جس کی وجہ سے موٹر وے پولیس کی جانب سے لاہور سیالکوٹ موٹر وے بند کرنے کے بعد M2 کو بابو صاحب سے ہانکا ڈوگرہ تک اور M3 کو لاہور سے سمندری کے علاقے تک بند کر دیا گیا ہے، اور موٹر وے پولیس کی جانب سے شہریوں کے لیے ہدایات بھی جاری کی جا رہی ہے کہ شہری غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں اور دوران سفر فوگ لائٹس کا استعمال لازمی کریں، کیونکہ حد نگاہ صرف اور صرف 50 میٹر تک محدود ہو کر رہ گیا اور عام ٹریفک کے لیے موٹر وے کو بند کر دیا گیا ہے تاکہ کوئی بھی افسوسناک واقعہ رونما نہ ہو سکے۔ اور ابھی بھی شہر کے جو اندرونی علاقہ جات ہے، جن میں ہربنس پورہ، مناوا، گلشن راوی، گلشن اقبال، لوئر مال اور دیگر کئی علاقہ جات ہیں، وہاں پہ بھی کافی زیادہ دھند شدت اختیار کر گئی ہے، اور محکمہ موسمیات کا بھی یہی کہنا ہے کہ آنے والے 10 روز تک جو ہے وہ شہر میں دھند کے ڈیرے برقرار رہیں گے۔ جی بہت شکریہ شاہزیب شہزاد، ہمیں تفصیلی طور پر بتا رہے تھے۔ ضلع انتظامیہ کی کورونا SOPs کی خلاف ورزی پر کارروائیاں جاری ہیں۔ شہر کے مختلف علاقوں میں 32 دکانوں، ریسٹورنٹس، فارمیسیز اور کیفیز کو سیل کیا گیا، جبکہ 50,000 روپے کے جرمانے عائد کیے گئے ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر ماڈل ٹاؤن ذیشان نصر اللہ رانجھا نے ہیگن داز اینڈ موقع ہیڈ آفس کو گلبرگ میں سیل کروا دیا ہے۔ CSH فارمیسی کو بھی مین مارکیٹ گلبرگ میں سیل کروایا گیا۔ AC کینٹ ظہیر شاکر نے 14 دکانوں، سٹورز اور 2 ریسٹورنٹس کو سیل کروایا۔ اوور چارجنگ پر 15,000 اور SOPs کی خلاف ورزی پر 10,000 روپے کا جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر سٹی فیضان احمد نے 11 دکانوں، سٹورز اور 2 ریسٹورنٹس کو سیل کروایا۔ AC سٹی نے اوور چارجنگ پر 15,000 اور کورونا SOPs کی خلاف ورزی پر 10,000 روپے کا جرمانہ عائد کیا۔ تحصیل کینٹ میں النصر گارمنٹس، بونینسا گارمنٹس، لائم لائٹ، دی باڈی شاپ، آؤٹ فٹر گارمنٹس، KFC فوڈ پوائنٹ، گرین ویلی سٹور، آؤٹ آف ڈریس گارمنٹ شاپ، شاہد آٹوز، جاوید ڈیجیٹل فروٹ شاپ، ملک ٹریڈرز، ہونڈا آٹو ورکس، سواتی اسٹال، انس LPG سینٹر، مدینہ شاورما پوائنٹ اور فراز موئنگ پائے ہوٹل کو سیل کیا گیا ہے۔ چھٹی کے روز لاہوریوں کی بڑی تعداد نے لنڈا بازار کا رخ کیا۔ رش میں خریداری کے باعث لاہوری کورونا SOPs پر عمل درآمد کرنا ہی بھول گئے۔ لاہوریوں کی بڑی تعداد موسم کی شدت کا مقابلہ کرنے کے لیے لنڈا بازار پہنچ گئی اور کم دام میں زیادہ سے زیادہ گرم کپڑے تلاش کرتی رہی۔ آج لوگوں کے پاس ٹائم ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں یہاں سے، جو دکانوں سے ملتا ہے تقریباً 500 روپے 1000 روپے سے، یہاں پر 200 میں خرید لیتے ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ لاہوریوں کو سرد موسم سے بچنے کی تو فکر ہے، لیکن شدید رش میں کورونا وائرس سے بچاؤ کی خلاف ورزیوں پر کوئی پریشانی نہیں۔ مجھے بہت اچھی چیزیں یہاں سے ملتی ہیں، بہت اچھی برانڈ ملتی ہیں اور بڑی پائیدار ہوتی ہیں، تو یہ میں لے کے، اور رعایت ملتی ہے، بازار سے آپ لیتے ہیں تو بہت مہنگی ملتی ہے۔ غلط بات ہے کہ ماسک نہیں پہنا ہوا کسی نے، یہ میرے خیال سے بہت ہی ایک جو ہے وہ بیماری پھیل رہی ہے۔ یہاں پہ لوگ ایسے ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ ہو رہے ہیں جیسے یہاں پہ کوئی میلہ ٹائپ لگا ہو۔ ٹھیک ہے، کیئر کرنی چاہیے۔ ہر اتوار کو بوہڑ والا چوک اور اطراف کے علاقوں میں سجنے والا لنڈا بازار کے باعث اطراف کی ٹریفک روانی بھی بری طرح متاثر رہتی ہے، جس سے گزرنے والوں کو مشکلات کا سامنا رہتا ہے۔ لاہوریوں کا کہنا ہے کہ سرد موسم میں گرم اور سستے کپڑے خریدنے کے لیے لنڈا بازار سے بہتر اور کوئی جگہ نہیں۔ کیمرامین وسیم نثار کے ساتھ نبیل ملک، سٹی 42۔ ناردرن گیس کمپنی گھریلو صارفین کو پریشر کے ساتھ گیس فراہم کرنے میں ناکام ہو گئی۔ خواتین چولہے اور برتن لے کر سراپا احتجاج۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ CNG سیکٹر سمیت دیگر بڑے صارفین کو گیس بند کر کے بھی شہر میں گیس کی قلت کے سنگین مسئلے کا حل نہ نکالا جا سکا، جس کی وجہ سے شالیمار لنک روڈ پر شہریوں نے گیس لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج کیا۔ خواتین نے برتن اور چولہے بجا کر اپنی آواز متعلقہ حکام تک پہنچانے کی کوشش کی۔ گیس ہماری، گیس ہماری۔
शहरियों ने बताया कि गैस आती नहीं ताहम भारी भरकम बिल आ जाते हैं। खाना पकाने में दुश्वारी की वजह से बच्चे भूखे सोते हैं। आ जाते हैं बिल हम दे देते हैं, एक दफा बिल ना भरे तो काटने आ जाते हैं, आपका बिल नहीं आया, क्या करें, कहाँ से दें, बच्चे घर में बैठे हुए हैं। जब से ये हुकूमत आई है ना, पहले तो हम महंगाई से परेशान थे, लेकिन अब ये मसला हुआ है कि ये गैस है। जब से सर्दियाँ आई हैं हम गैस ही नहीं परेशान है, जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। बच्चे रात को तो भूखे सोने वाला हिसाब है, सुबह उठ के भी बच्चे मुँह देखते हैं कि मम्मा नाश्ता, मम्मा बेचारी क्या करे, क्या नाश्ते क्या करें। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने सीएनजी सेक्टर और बाज इंडस्ट्री को इस बुनियाद पर गैस मुअत्तल की कि घरेलू सार्फिन को प्रेशर के साथ गैस दी जा सके। उसके बावजूद घरेलू सार्फिन तक गैस सप्लाई में बेहतरी ना लाई जा सकी। शाहिद सिपरा, सिटी 42। एक तरफ तो गैस का मसला है, दूसरी जानिब बनास टाउन मेन रोड की खस्ता हाली की कुछ बात की जाए तो जगह जगह गड्ढे हैं और उड़ती धूल के बायस अहले इलाका को शदीद दुश्वारी का सामना है। नास टाउन मेन रोड का हाली का शिकार है। सड़क पर पड़े गड्ढों के बायस न सिर्फ गाड़ियां खराब हो जाती हैं बल्कि अक्सर हादसात भी रोनुमा हो जाते हैं। गुजरने के वक्त अक्सर इधर मोटरसाइकिल वाले जो है ना वो गिर जाते हैं, अपना लेडीज होती हैं साथ। शहरियों का कहना है कि बारिशों में तो यहाँ से गुजरना भी मुहाल हो जाता है, जबकि धूल मट्टी के बायस मुख्तलिफ अमराज का भी शिकार हो रहे हैं। रोड की वजह तो बड़े तंग होए खलोते हैं, जो इत्थे पानी खलोंदा ना ते इन्ना गोडियां जिन्ना पानी खलोंदा है ते बहुत तंग हो जाने। मोटरसाइकिलां विच डुब जांदियां ने, गड्डियां विच अद्धियां बंद हो जांदियां ने, बहुत रोड तंग सानू किते खलोता पाना। शहरियों का कहना है कि बारहा इस रोड की तामीर के मसले को उजागर करने की कोशिश की, लेकिन कहीं उनकी सुनवाई नहीं हुई। अहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब से अपील की है कि रोड की तामीर का काम करवा के इलाके के देरीना मसले को हल किया जाए। कैमरामैन एहसन जावेद के साथ उमर असलम। इंतजार गाह और दीगर सहूलियात के दम फराहमी का ये मामला है। गुलाब देवी अस्पताल में मरीज लवाहिकीन खार होने लगे, खुली छत तले रातें गुजारने पर मजबूर हैं। शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों के बाद गुलाब देवी अस्पताल में भी इंसानियत की तस्लील का अमल जारी है। ठिठुरती सर्दी में गुलाब देवी अस्पताल के मरीजों के लवाहिकीन के लिए कोई सहूलत ना होने की वजह से लवाहिकीन सर्दी से बचते इमारतों के गिरदोनवा में बिस्तर डालने पर मजबूर हैं। लवाहिकीन के लिए कोई इंतजामात ना होने की वजह से खवातीन, मर्द और बच्चे खुली छत तले रातें गुजारने पर मजबूर हैं। लाहौर जू सफारी में हिरनों की चोरी का मामला। 15 रोज के दौरान लाहौर जू सफारी में 2 मरतबा चोरी की वारदात हुई है। जनवरी के पहले हफ्ते में 2 हिरन चोरी हुए। एक हिरन को मुर्दा हालत में जंगले के बाहर फेंक दिया गया, जबकि एक हिरन को लेकर चोर रफू चक्कर हो गए। गुज़िश्ता हफ्ते फिर 4 हिरन चोरी हुए हैं। थाना फैक्ट्री एरिया में गाड़ियों के कंप्यूटर इंजन चिप्स चोरी करने वाला गिरोह सरगर्म हो गया। चोर एक रात में मदीना कॉलोनी वॉल्टन में 4 गाड़ियों पर हाथ साफ कर गए। चोर गली में खड़ी 4 गाड़ियों के कंप्यूटर इंजन चिप्स निकाल कर ले गए हैं। रात गए मजीद गाड़ियों के इंजन चिप्स की चोरी हुई है। पंजाब फूड अथॉरिटी के शहर के मुख्तलिफ इलाकों में छापे, 6 प्रोडक्शन यूनिट, 4 डिपार्टमेंटल स्टोर्स और दीगर को भी जुर्माने और सील किया गया है। निजी पंजाब फूड अथॉरिटी रफाकत अली नुस्वाना का कहना है कि उसामा चिकन बर्गर जीवन मार्केट को नाकिस मसालों के इस्तेमाल, गंदे और बदबूदार माहौल की बिना पर वाबरा टाउन में चिकन नाव नामी रेस्टोरेंट को फंगस ज़दा फ्रीज़र और इंतहाई बदबूदार किचन के बायस मेन मार्केट में गुलबर्ग स्टोर को ज़ायदुल मयात अशिया की फरोख्त और सफाई के नाकिस इंतजामात पर, गुलशन रावी में सदफ डिपार्टमेंटल स्टोर को गैर मयारी स्टोरेज और चूहों की मौजूदगी पर, राजगढ़ में रमज़ान बेकरी को बदबूदार मशीनरी के इस्तेमाल पर सील किया गया। इसके अलावा बागबानपुरा में गाजी चिकन सेल पॉइंट को इंतहाई बदबूदार फ्रीज़र के इस्तेमाल और हशरात की बहुतात पर और मदीना स्वीट्स प्रोडक्शन यूनिट को मिठाई में मुर्दा हशरात की मौजूदगी पर सील किया गया। लाहौर के सयाहती मंसूबे माली मुश्किलात की नज़र हो गए। लाहौर डबल डेकर बस की बहाना आमदन 15 लाख से कम होकर 9 लाख रह गई। इजाफी अखराजात का बोझ महकमा सयाहत के कंधों पर आ गया। डबल डेकर बस को सालाना 7 मिलियन बजट मिलता था, 2018 के बाद 1 रुपया भी नहीं मिल सका। सयाहों को लाहौर की सैर करवाने वाली डबल डेकर बस हुकूमत की तवज्जो के मुंतज़िर है, जबकि साबिक हुकूमत के दौर में शुरू होने वाले इस मंसूबे को सालाना 7 मिलियन का बजट मिलता रहा। तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनने के बाद इस मंसूबे का बजट बंद कर दिया गया। 2018 से 2021 तक डबल डेकर बस ने अपने अखराजात खुद पूरे किए। कोरोना बहरान की वजह से सियाहती सरगर्मियां मुतासिर हुई। LD इंजीनियरिंग विंग की नाअहली, लाल शहबाज कलंदर अंडरपास की नई सर्विस लेन की लेवलिंग में कोताही बढ़ती गई। आए रोज हादसात होने लगे हैं। लाल शहबाज कलंदर अंडरपास की नई सर्विस लेन बैठना शुरू हो गई है।
सेंटर पॉइंट से MM आलम की जानिब जाने वाली सर्विस लेन पर नाकिस एस्फाल्ट वर्क किया गया। सर्विस लेन मुख्तलिफ जगहों से बैठना शुरू हो गई है। एस्फाल्ट कारपेटिंग की तह खराब होने से मोटरसाइकिल डगमगाना शुरू हो गई हैं, जबकि मंसूबे के कैंप ऑफिस के मकाम पर ग्रीन एरिया समेत दीगर को भी बहाल ना हो सके। तारीखी मॉल रोड हुकूमती अदम तवज्जुही की नजर हो गई। रोड की बहाली के मंसूबे कागजों में दब गए। फुटपाथ सर्विस रोड्स टूट फूट का शिकार हैं। तारीखी सड़क का कोई पुरसाने हाल ना रहा। और मजीद आपको बताएं कि खस्ता हाल फुटपाथ सर्विस रोड सरकारी इदारों की कारकर्दगी का अमली नमूना पेश कर रहे हैं। शहर की तारीखी शाहराह मॉल रोड के फुटपाथ हुकूमती अदम तवज्जुही का शिकार हो गए। शहर का दिल कहलाने वाली मॉल रोड की बहाली का मंसूबा फाइलों में दब गया। खस्ता हाली का शिकार फुटपाथ और सर्विस रोड सरकारी इदारों की नाकिस कारकर्दगी का अमली नमूना पेश कर रहे हैं। लाहौर में सफाई की सूरत हाल बेहतर ना हो सकी, चूंकि अमर सिद्धू से मुंसलिक चंद्राय रोड नाला गंदगी से भर गया। सफाई ना होने से नाला बंद हो गया है। ये चुंगी अमर सिद्धू से मुंसलिक चंद्राय रोड नाला है, जो निकासी आब की बजाय कूड़े का मरकज बन चुका है। गंदगी से साफ मालूम होता है कि नाले का कूड़ा अरसा दराज से पड़ा है और सफाई भी कई महीनों से नहीं हुई। अहले इलाका का कहना था कि सफाई ना होने के बायस गंदा पानी ओवरफ्लो करना शुरू हो जाता है। सतह बुलंद होने से पानी घरों में चला जाता है। कई बार शिकायत की, लेकिन नाले की सफाई पर तवज्जो ही नहीं दी गई। अहले इलाका ने बताया कि नाले के गंदे होने का जिम्मेदार एक तो सफाई का अमला है, जो रोड से कूड़ा उठाते वक्त बाकी कूड़ा नाले में डाल जाता है, और दूसरी जानिब वो शहरी हैं जो नाले में गोबर और कूड़ा फेंक जाते हैं। नाले की बाउंड्री वाल ना होने से कई बार गाड़ियां भी हादसात का शिकार हो चुकी हैं। 9 साल हो गए ने इत्थे रोड ते बैठे हैं, कोई ना कोई रोज रक्शे वाला डिग्गा हुंदा या पैदल चलदा बंदा डिग पैंदा है कूड़े तो तिलक के, कोई रक्शे वाला डिग पैंदा है या कोई ट्राली डिग पैंदी या कोई गड्डी डिग पैंदी है ते लोग कूड़ा छाड़ देते हैं। इस नाले में कितने रिक्शे गिरते हैं, लोग गिरते हैं, बाइकें गिरती हैं और गाड़ियां भी कई दफ़ा गिर चुकी हैं क्रेनों के साथ, और ये गंदगी इतनी है कि हम इससे बहुत परेशान हैं। शहरियों ने कहा कि वजीर आला से गुजारिश है कि चंद्राय रोड की इस मुश्किल को आसान बनाए। चंद्राय रोड पर गंदगी से भरे नाले ने मुतलका महकमों की कारकर्दगी का तो पोल खोल दिया है। अब देखना ये है कि अरबाब इख्तियार कब यहाँ के लोगों को इस गंदगी से निजात दिलाते हैं। कैमरामैन अली नुमान के हमरा जिशान सफदर, सिटी 42। शहर में जदीद सफरी सहूलियात से आरास्ता मेट्रो बस का ट्रैक खस्ता हाली का शिकार। पिलर्स की तज़ीन और आराइश का काम एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है। मेट्रो ट्रैक के पिलर्स पर करोड़ों की लागत से माहौल की बेहतरी और खूबसूरती के लिए प्लास्टिक के गमलों में पौधे लगाए गए थे, जिनमें से कुछ इंतजामिया की गफलत का शिकार हो गए तो कुछ को नशेइयों ने उतार कर बेच डाला, जिसकी वजह से ट्रैक की खूबसूरती मांद पड़ गई। PHA की जानिब से मेट्रो ट्रैक के पिलर्स की खूबसूरती के लिए एक बार फिर से ताज़ीन और आराइश का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। प्लास्टिक के फूल बूटों से पिलर्स को सजाने का अमल जारी है, जिसने ट्रैक की खूबसूरती को 4 चांद लगा दिए हैं। इब्तदाई तौर पर सिविल सेक्रेटेरिएट से भाटी चौक तक पिलर्स की ताज़ीन और आराइश और फूल बूटे लगाने का अमल मुकम्मल किया गया है, जिसके बाद बाकी पिलर्स को भी मरहलावार सजाया जाएगा। पिलर्स की ताज़ीन और आराइश पर शहरियों की जानिब से इस मस्बत इक़दाम को सराहा गया। माशाल्लाह इससे खूबसूरती नज़र आ रही है और अच्छा है। पहले चूँकि लोग मेहनत उन्होंने की थी, लगा लिए थे, लेकिन फिर बाहर उतार दिए गए थे। लोग तो हर किस्म के लोग आते हैं, तो यह शरारत थी जो भी था तो उन्होंने उतार दिए थे। अब माशाल्लाह लगाए हैं तो खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। ये खूबसूरती में इजाफा करते हैं, लेकिन लोग शरारतें करते हैं, यहाँ से उतार लेते हैं। अब दोबारा फिर उन्होंने लगाए हैं। मेरा ख्याल है ये सासा होते हैं, इनकी हिफाजत करनी चाहिए। अवामी पैसों से बनाए गए ये मेगा स्ट्रक्चर्स और प्रोजेक्ट्स कौम का कीमती असासा हैं, जिनकी हिफाजत न सिर्फ इंतजामिया बल्कि शहरियों की भी उतनी ही जिम्मेदारी है। कैमरामैन अली अब्बास के हमरा उस्मान अलीम, सिटी 42। वर्ल्ड टूर पर आए जर्मन जोड़ा जिला इंतजामिया की जानिब से नाभा रोड से हटाए जाने पर सीखपा हो गया। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी से कामयाब मुज़ाकरात पर जर्मन जोड़ा पनागा मुंतकिल होने पर आमादा हो गया।
नाबा रोड पर गुज़िश्ता 6 माह से मुकीम जर्मन टूरिस्ट जोड़े नेजल और डोमिनिका मारिया की गाड़ी को जिला इंतजामिया ने उठाकर महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया तो जर्मन टूरिस्ट जोड़ा सीखपा हो गया। ताहम असिस्टेंट कमिश्नर सिटी फैजान अहमद ने जर्मन टूरिस्ट जोड़े को मुतमिन किया कि इनकी गाड़ी महफूज है और इन्हें पनाहगाह मुंतकिल करने पर भी राजी किया। जर्मन टूरिस्ट जोड़े नेजल और डोमिनिका मारिया ने असिस्टेंट कमिश्नर सिटी के साथ कामयाब मुज़ाकरात पर पनाहगाह मुंतकिल होने पर आमादगी जाहिर की तो दोनों को पनाहगाह मुंतकिल कर दिया गया। इस मौका पर डोमिनिका मारिया ने कहा कि इंडिया जाना चाहते हैं लेकिन कोरोना वायरस के बाइस नहीं जा सके, ताहम यहाँ मुंतकिल होने के बाद खुश हैं। I have no plans. If it's possible, I like to go to India. But there is coronavirus now, so the Vagabondo is closed. डिप्टी कमिश्नर लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक, असिस्टेंट कमिश्नर सिटी फैजान अहमद और असिस्टेंट कमिश्नर मॉल्टॉन जिशान नसरुल्लाह रांझा से बातचीत के दौरान जर्मन जोड़े ने नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि हमारी इजाजत के बगैर गाड़ी क्यों उठाई गई। ये गाड़ी नहीं, हमारा घर उठाया गया। हम 6 माह से यहाँ हैं, हमें कोई डर और खौफ नहीं था। डिप्टी कमिश्नर लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक भी पनाहगाह पहुँच गए और जर्मन जोड़े से गुफ्तगू करते हुए यकीन दहानी कराई आपको सिक्योरिटी के बाइस यहाँ मुंतकिल किया गया। आपके तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त हैं, ताहम आपके वीजा की मुद्दत भी खत्म हो चुकी है। इसमें से 3 ही ऑप्शन रह जाते हैं, या तो इनका वीज़ा एक्सटेंड किया जाएगा या इनकी जो डेस्टिनेशन है फर्दर जहाँ पे ये जाना चाहते हैं, या फिर इनको वापस रिपोर्ट जर्मनी किया जाएगा। तो डिपेंड्स ये हायर अथॉरिटीज़ के हवाले से वो इस पे जो डिसीजन लेंगे। 11 मुल्कों की सैर के बाद जर्मन जोड़ा बरास्ता ईरान पाकिस्तान पहुंचा, लेकिन इनकी अगली मंजिल भारत थी, ताहम कोरोना के बाइस भारत न जा सके। वर्ल्ड टूर पर निकले जर्मन जोड़े को नाबा रोड से पनाहगाह तो मुंतकिल कर दिया गया है, ताहम इनके मुस्तकिल क़याम का फैसला हायर अथॉरिटी को करना है क्योंकि इनका वीज़ा खत्म हो चुका है। कैमरामैन शाहिद महमूद के साथ राउदिल शाहद हुसैन, सिटी 42। दूसरी जानिब शहर के मुख्तलिफ इलाकों में स्ट्रीट लाइट्स बंद पड़ी हैं, शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात दरपेश होने लगी हैं। शिकायत के बावजूद इंतजामिया खराब लाइट्स बहाल न कर सकी। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं हसनैन औलख से। हसनैन, आगाह कीजिए। अजी, स्ट्रीट लाइट मंसूबे की बात की जाए तो करोड़ों रुपए की लागत से लगाए जाने वाले स्ट्रीट लाइट मंसूबे के तहत शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो बंद पड़ी हैं, जिसकी वजह से जो शहरी हैं उनको गुजरने में मुश्किलात दरपेश हैं। मैं इस वक्त फिरोजपुर रोड पर मौजूद हूँ, कलमा चौक पर। यहाँ पर जो स्ट्रीट लाइट्स हैं मेरे हक में देखा जा सकता है कि स्ट्रीट लाइट बंद हैं। शहरियों का ये कहना है कि कई माह गुजर गए हैं, यहाँ पर स्ट्रीट लाइट की इंतजामिया की जानिब से मरम्मत नहीं करवाई जा सकी। इसके साथ साथ जो मेट्रो बस ट्रैक है उसकी बात की जाए तो मुख्तलिफ मकामात पर मेट्रो बस की जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो भी बंद हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पर मुख्तलिफ मकामात पर LEDs लगाई गई हैं इंतजामिया की जानिब से। LEDs की बात की जाए तो LEDs भी बंद पड़ी हुई हैं, लेकिन इंतजामिया की जानिब से कोई भी ऐसी हरकत में नहीं आई इंतजामिया, और ना ही उन LEDs और स्ट्रीट लाइट्स को मरम्मत की जा सकी है और उनको चालू किया जा सका है। इसके अलावा शहर के मुख्तलिफ मकामात पर अगर देखा जाए वहाँ स्ट्रीट लाइट चल रही हैं, लेकिन बाज़ मकामात ऐसे भी हैं जहाँ पर स्ट्रीट लाइट नहीं चल रही, जिसकी वजह से जो शहरी हैं उनको मुश्किलात दरपेश हैं। उनकी तवज्जो दिलवाने के लिए ठीक है हसनैन औलख, हमें तफसीलात से आकर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि अपोजिशन का काम तनकीद है, हुक्मरान अवामी रिलीफ को तरजीह दें। मुल्क के हालात तकाजा करते हैं कि आम आदमी के हालात को बेहतर बनाया जाए। मुस्लिम लीग के सदर और साबिक वज़ीर-ए-आज़म चौधरी शुजात हुसैन, स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही और MNA मोनस इलाही से विफाकी वज़ीर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्रिगेडियर इजाज़ शाह ने उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की और चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। ब्रिगेडियर इजाज़ शाह ने चौधरी शुजात हुसैन के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। ब्रिगेडियर इजाज़ शाह ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन में कामयाबी पर चौधरी शुजात हुसैन चौधरी परवेज़ इलाही को मुबारकबाद दी और इस मौका पर चौधरी शुजात हुसैन ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि अपोजिशन का काम तनकीद है, हुक्मरान अवामी रिलीफ को तरजीह दे। मुल्क के हालात तकाजा करते हैं कि आम आदमी के हालात को बेहतर बनाया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि कुछ अरसे के लिए मेगा प्रोजेक्ट्स मौखर करके आम आदमी को रिलीफ फराहम किया जाए। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही की साबिक रुकन कौमी असम्बली मियां मनूर की रिहाइश का आमद हुई है। भाई की वफात पर इजहार ताज़ियत किया। स्पीकर पंजाब असम्बली बोले, मौसम ठंडा होने के बावजूद अपोजिशन सियासी मौसम गर्म करना चाहती है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही साबिक रुकन कौमी असम्बली मियां मुनीर की रिहाइश गाह जाकर उनके भाई मियां नवाज़ मरहूम के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया और मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की गई। इस मौके पर चौधरी परवेज़ इलाही का कहना था कि सेनेट इलेक्शन और ज़िमनी इलेक्शन में तमाम सियासी पार्टियां हिस्सा ले रही हैं, जो कि खुशाइंद है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अवाम को रिलीफ देना चाहते हैं, इसके लिए अवाम समेत सबको मिलकर चलना होगा। अवाम के हालात इसी सूरत में बेहतर होंगे
बशर्ते कि फौरी इकदामात किए जाएँ। चौधरी परवेज़ इलाही ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में कामयाब होने वाले मरकजी सदर चौधरी शुजात हुसैन, मरकजी जनरल सेक्रेटरी तारिक बशीर चीमा और 4 सूबों समेत गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद कैपिटल के सदूर और जनरल सेक्रेटरीज़ को मुबारकबाद देते हुए कहा कि पार्टी में जमहूरी अमल मुकम्मल हो गया है। अपोजिशन जमातों की जानिब से इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज की कॉल। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज एहतजाज में शिरकत के लिए इस्लामाबाद रवाना हो गई। पीडीएम की जानिब से 19 जनवरी को इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज की कॉल दी गई है। इसी सिलसिले में मरियम नवाज रैली की क़यादत करते हुए एहतजाज में शरीक होंगी। मरियम नवाज जाती उम्रा फार्म हाउस से बरास्ता मोटरवे इस्लामाबाद रवाना हुई, जहाँ वो पीर को एहतजाज के इंतजामात को हतमी शक्ल देने के लिए इजलास की सदारत भी करेंगी। मुआविन खुसूसी बराए बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और चेयरमैन मुत्तहिदा उलमा बोर्ड पंजाब हाफिज़ ताहिर अशरफी ने कहा कि मौजूदा हुकूमत ख़त्म नबूवत की चौकीदार है। फ्रांस में बनाए गए गुस्ताखाना खाकों पर तमाम इस्लामी ममालिक से राब्ते में है। सीरत अकेडमी अपर मॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाफिज़ ताहिर अशरफी ने कहा कि किसी को फितनाबाजी करने की इजाज़त नहीं देंगे। मुकद्दसात और ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सानिया मज के मुलजिमान के पीछे जो भी कुव्वतें कार फरमा हैं वो जल्द कानून की कटहरे में होंगी। वज़ीर रेलवे आज़म खान सवाती का रेलवे को खसारे से निकालने के लिए जामे एक्शन प्लान बनाने का फैसला किया गया है। मुतल्लिका अफसरान से तजावीज़ तलब कर ली। वज़ीर रेलवे आज़म खान सवाती ने महकमे को खसारे से निकालने के लिए जामे एक्शन प्लान बनाने का फैसला किया है। एडिशनल जनरल मैनेजर्स, डीजी ऑपरेशन और डीजी लैंड एंड प्रॉपर्टी से तजावीज़ तलब कर ली हैं। चेयरमैन रेलवे की हिदायत की रोशनी में CEO रेलवे ने बरास्ता जारी कर दिया है। बरास्ते में कहा गया है कि फ्रेट इनकम में 25% इजाफे के लिए फौरी प्लान मुरतब किया जाए और कम से कम वक्त में रेलवे को खसारे से निकालने के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाए जाएं। तमाम आला अफसरान महकमे की बेहतरी के लिए जल्द तजावीज़ पेश करें। अफसरान की तजावीज़ के मुताबिक रेलवे की तजदीद के हवाले से एक्शन प्लान मुरतब किया जाएगा। CCPO गुलाम महमूद डोगर छुट्टी के रोज़ भी घर ना बैठे। शहर के दाखिली और खारजी नाकों पर सिक्योरिटी इंतजामात चेक करने जा पहुँचे। CCPO गुलाम महमूद डोगर इतवार की शाम रावी पुल पर कायम पुलिस नाके का अचानक दौरा करने आए। दौरे के दौरान CCPO ने सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा भी लिया। सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस एहलकारों को ब्रीफिंग दी। गुलाम महमूद डोगर ने काले शीशों, बगैर नंबर प्लेट, टेम्पर्ड नंबर प्लेट गाड़ियों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का भी हुक्म दिया। इस मौके पर CCPO ने इश्तिहारी मुजरिमान और मफरूरों को पकड़ने वाले एहलकारों को इनामात से नवाजने की भी यकीन दहानी कराई। गुलाम महमूद डोगर ने पुलिस एहलकारों को नाके पर दौरान चेकिंग शहरियों के साथ खुश इखलाक़ी से पेश आने की भी हिदायत की है। CCPO की आमद के मौके पर रावी पुल नाके पर तैनात एहलकारों के लिए चाय और गर्मा गर्म जलेबी का भी खुसूसी तौर पर एहतमाम किया गया। मॉडल टाउन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के इंतखाबात में गर्मा गर्मी। मॉडल टाउन ग्रुप और रिफॉर्मर्स ग्रुप वोटर्स को घायल करने मैदान में उतर आए। मॉडल टाउन ग्रुप ने इलेक्शन 2021 की इंतखाबी मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया। इस मौके पर उम्मीदवार सदर दाऊद बारी और उम्मीदवार नायब सदर हसीबुर रहमान का कहना था कि सोसाइटी में रहने वाले रिहायशियों को मॉडल टाउन ग्रुप पर मुकम्मल एतमाद है। उन्होंने कहा कि सोसाइटी मेंबरान के एतमाद के मुताबिक सोसाइटी में तरक्याती काम करवाना अव्वलीन तरजीह है। लोग जो आए हैं वो अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से आए हैं और आपने देखा है माशाल्लाह काफ़ी लोग थे, वो वोटर हैं हमारे ये, और वो हमें पिछले 9 साल से इलेक्ट करते चले आ रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि इस साल भी अल्लाह की ज़ात से कि इस साल भी वो हमें वोट दे के कामयाब करेंगे। हमने मॉडल टाउन को मेंटेन रखा है, इसके कल्चरल हेरिटेज को मेंटेन रखा है, इसकी सफाई सुथराई मेंटेनेंस और ख़ास तौर पे ग्रीनरी का ख्याल रखा है, इसके स्पोर्ट्स ग्राउंड को आबाद रखा है। इलेक्शन इजलास के दौरान सुलेमान बारी, अरसलान बारी, वदूद बारी, जुनेद बारी, मुजद्दिद बारी समेत दीगर ने मॉडल टाउन ग्रुप की सपोर्ट का ऐलान भी किया। दूसरी जानब रिफॉर्मर्स ग्रुप के उम्मीदवार सदर ब्रिगेडियर रिटायर्ड हामिद खलील ने मेंबरान को मंशूर बारे आगाह किया। इंतखाबी मीटिंग में उज़मा कारदार, मिसेस कैसर अहमद, मिसेस रबिया शराज, मिसेस खलील अहमद समेत दीगर शरीक हुए। हामिद खलील का कहना था कि रिफॉर्मर्स ग्रुप के लिए मेंबरान का वोट और सपोर्ट मॉडल टाउन में मुस्बत तब्दीली लाएगा। मैंने डोर टू डोर जाना शुरू किया है और मैं इतना मुतमईन हूँ कि लोगों के इतने मसाइल हैं और लोग इतने तंग हैं इस मैनेजमेंट में के साथ
कि मैं समझता हूं कि वो घरों से निकलेंगे और रिफॉर्मर्स ग्रुप के लिए वोट करेंगे। और सोसाइटी वोटर्स ने कहा कि मॉडल टाउन के रिहायशी जदीद सहूलियात से महरूम है। उन्होंने कहा कि सोसाइटी में स्पोर्ट्स की तमाम सहूलियात मुफ्त फराहम की जानी चाहिए। यहाँ पे अरबों की ज़मीन है, उसको नीलाम करने की भी एक भोंडी कोशिश की गई, जो कि हम लोग ने कोर्ट्स में जाके उसको रुकवाया और अरबों की जो प्रॉपर्टी है वो मॉडल टाउन सोसाइटी में हमने बचाई। बचपन में जो हम गली मोहल्लों में मॉडल टाउन की ग्राउंड्स में जो हम बड़ा फ्रीली खेला करते थे और जिनको हम बिना डर, किसी न डर की वजह से हम जाके खेला करते थे, आज इस दौर में, इस टाइम पे वो चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं। मॉडल टाउन सोसाइटी के उम्मीदवारान 21 फरवरी के इंतखाबी मार्के के लिए पुरजोश हैं। उनका कहना है कि सोसाइटी की डेवलपमेंट तमाम मेंबरान के लिए अवलीन तरजीह है। कैमरामैन सज्जाद अहमद के हमरा, साउथ बट, सिटी 42। गुलकारा हुमैरा अरशद की दरबार बीबी पाक दामन पर हाजिरी और इस मौका पर लंगर तकसीम किया गया। उनकी जानिब से मुल्क कौम की सलामती के लिए दुआ की गई। मारूफ गुलकारा हुमैरा अरशद ने दरबार बीबी पाक दामन पर हाजिरी दी, वहाँ झाड़ू दिया, नवाफिल अदा किए और मुस्तकीन में लंगर भी तकसीम किया। हुमैरा अरशद का इस हवाले से कहना था कि दरबार बीबी पाक दामन आकर रूहानी सुकून हासिल करती हैं। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।